गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने टू टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की थी, जो थी हमारी इंथैल्पी ऑफ कंबशन एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इंथैल्पी ऑफ कंबशन सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट से हमने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ कंबशन से कैलकुलेट की थी। दिस इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट एंड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमने ट्राई किया था। आज हम नेक्स्ट इंथैल्पी, थर्ड टाइप ऑफ इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन आपको मालूम क्या होती है? हाँ, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सो इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of, sorry, not 1 mole, it's 1 gram equivalents, 1 gram equivalent of an acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of base, or vice versa. Vice versa means 1 gram equivalent of base is neutralized by acid, या 1 gram equivalent of acid is neutralized by base. So enthalpy change when 1 gram equivalent of acid is completely neutralized by 1 gram equivalent of base is called enthalpy of neutralization. For example, HCl plus NaOH, acid plus base, produce NaCl plus water, and enthalpy of neutralization for this reaction is delta H is minus 57.1 kilojoule, or it may be your HCl plus KOH, KCl plus water, again delta H is minus 57.1 kilojoule, or you can use HNO3 plus NaOH, NaNO3 plus water, and delta H is again minus 57.1 kilojoule. Means enthalpy of neutralization for strong acid and strong base is always minus 57.1 kilojoule. कुछ बुक्स में ये minus 57.3 भी दे रखी है, ध्यान रखना ये चीज़। तो we can say that strong acid plus strong base, salt and water, अब जो हीट रिलीज होगी इस रिएक्शन में डेल्टा एच वो होगी minus 57.1 किलोजूल। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, and that is minus 57.1 kilojoule. Now why? Question arises कि why strong acid and strong base have always same enthalpy of neutralization? कोई भी strong acid हो, कोई भी strong base हो, enthalpy of neutralization हमेशा minus 57.1 ही रहती है. The reason is the basic reaction during neutralization is HN plus OHN produce water. बेसिक रिएक्शन आपकी HN plus OHN produce water, ये रिएक्शन आपकी बेसिक होती है। एसिड कोई भी हो it will produce HN, बेस कोई भी हो it will produce OHN, and the overall reaction will be HN plus OHN produce water. For example, अगर हम लें, जो हमने लिया था HCl and NaOH, these two combines to produce NaCl and water, but basically HN in aqueous solution produce HN plus chloride ion,
HCl in aqueous solution produce HIN plus chloride ion, whereas NaOH in aqueous solution produce sodium ion and chloride ion. Sorry, sodium ion and hydroxide ion, not chloride, it's hydroxide, OH negative. So when reaction takes place, HIN and OH ion combines to produce water, and sodium ion and chloride ion produce sodium chloride, which is strong electrolyte and in aqueous solution occurs in separate ions. तो एक्वस सॉल्यूशन में वो आपका सेपरेट आयंस की एक्वस सोडियम आयन और एक्वस क्लोराइड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो एक्वस क्लोराइड, एक्वस सोडियम आयन, these do not combine in aqueous solution, they remain separate, but HIN and OH they combines to produce water, and this water dissociate to a very small extent. तो वाटर बहुत कम एक्सटेंट तक, बहुत थोड़ा सा डिकम्पोज होता है, इट विल रिमेन एज वाटर. तो ओवरऑल जो रिएक्शन होती है इसके अंदर, यू कैन से दैट क्लोराइड आयन विल कैंसिल क्लोराइड आयन, सोडियम आयन विल कैंसिल सोडियम आयन, द ओवरऑल रिएक्शन इज HIN प्लस OH प्रोड्यूस वाटर. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, ओवरऑल रिएक्शन आपकी एक ही रहेगी, HIN प्लस OH प्रोड्यूस वाटर. सो एनर्जी रिलीज्ड भी आपकी सेम ही रहेगी, -57.1 किलो जूल पर मोल पर ग्राम इक्विवेलेंट. तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हमारी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा सेम ही रहती है. अब बात आ जाती है कि अगर एक भी वीक हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो, then enthalpy of neutralization will be slightly less negative than -57.1. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए CH3 COH प्लस NaOH. नाउ बेस इज स्ट्रॉन्ग but acid is weak. Now reaction will be sodium acetate plus water, and enthalpy of neutralization for this reaction delta H will be slightly less negative than 57.1. ये आपकी है 55.4 किलो जूल आती है वैल्यू इसकी, 55.4 किलो जूल. It will be slightly less than 57.1. Now why it is less negative? The reason is some of the heat, it is बल्कि इट इसकी बजाय हम ये लिखेंगे enthalpy of neutralization for strong acid and weak base or weak acid and strong base is slightly less negative than 57.1 किलो जूल. 57.1 किलो जूल से कुछ कम नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज कम होती है, बिकॉज सम ऑफ एनर्जी रिलीज्ड is used to ionize weak acid और weak base. जो weak acid है या weak base है तो उसको आयनाइज करने में कुछ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, और इसीलिए जो नेट एनर्जी रिलीज होती है वो 57.1 से कम होगी. And the difference is equal to
the difference is equal to enthalpy of वीक एसिड और बेस। जो डिफरेंस आएगा वो वीक एसिड और वीक बेस का इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। सो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। तो जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड प्लस NaOH प्रोड्यूस सोडियम एसिटेट प्लस वाटर। डेल्टा H जो है -55.4 इसमें आती है। तो कितना डिफरेंस आया है वो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड होगी। वीक एसिड था इसमें हमारा, तो इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड CH3COH इट विल बी इक्वल टू -55.4 -57.1. So the difference which is 1.6 kilojoule. 1.6 kilojoule is the enthalpy of ionization of weak acid. साइन आएगा आपका पॉजिटिव साइन, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब। तो एसिटिक एसिड 1.6 किलोजूल एनर्जी एब्जॉर्ब करके कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। तो इस तरह से हम इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और इंथैल्पी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस -57.1, वीक एसिड या वीक बेस होगा अगर तो वो आपकी लेस देन आएगी। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं, इसमें हम HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। फॉर दिस enthalpy of neutralization delta neutralization H is -52.3 kilojoule. So here is we have weak base, so enthalpy of ionization of weak base ammonium hydroxide will be equal to -52.3 -57.1, and this value comes to be 5, not 5, it will be 4.8 kilojoule. So 4.8 kilojoule is the enthalpy of ionization of ammonium hydroxide. तो इस तरह से हमारे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्राइजेशन डेफिनेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्राइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज -57.1। वाई, उसका रीजन हो गया आपका बिकॉज द बेसिक रिएक्शन इज ऑलवेज सेम, HN प्लस OHN प्रोड्यूस वाटर, एग्जाम्पल उसमें दिखा दिया गया। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस या वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इट विल बी लेस नेगेटिव देन 57.1, एंड द वैल्यू the decreased value is equal to enthalpy of ionization of weak acid or weak base. तो अब इसमें हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन पर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन अगर आ जाता है, लेट योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन, कैलकुलेट enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन of 0.6 mole HCl solution is, if 0.6 mole HCl solution is neutralized by 0.6 mole NaOH solution. So obviously here the reaction is HCl plus NaOH produce NaCl plus water. So it will produce HN. The concentration of HN will be 0.6 m. It will produce NaOH, OHN. Concentration of OHN will also 0.6. OH की concentration भी 0.6 है, HN की भी concentration 0.6 है, and it will produce water. Now
आइदर 1 मोल एचाइन और 1 मोल ओ एचाइन, कुछ भी हम इसमें ले सकते हैं। तो 0.6 मोल की जो आएगी, अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें, सो 1 मोल एचाइन ऑन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूसेस 57.1 किलो जूल एनर्जी, माइनस 57.1 किलो जूल एनर्जी। तो 0.6 से कितनी प्रोड्यूस होगी, तो माइनस 57.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, तो इट विल बी 32.9, sorry, 34 point, it's not 32, it will be 42, the value is 34.26 किलो जूल माइनस। तो 1 मोल प्रोड्यूस 57.1 किलो जूल, तो 0.6 मोल विल प्रोड्यूस माइनस 57.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.6। आप एचआईन भी ले सकते हैं और ओ एचआईन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो आंसर विल बी माइनस 34.26। इसी तरह जिसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि 0.5 मोल ऑफ HNO3, 0.5 m या 0.5 मोल ऑफ HNO3 is mixed with 0.3 moles of QH. What is the enthalpy of ionization, neutralization? तो HNO3 प्लस KOH प्रोड्यूस KNO3 प्लस वाटर। ना HNO3 से जो एचाइन प्रोड्यूस होंगे, एचाइन की कंसंट्रेशन 0.5 मोल होंगे। KOH से जो OH आयन प्रोड्यूस होंगे वो 0.3 होंगे। नाउ वी आर टू कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो यहाँ पर हमें अपना मोल कॉन्सेप्ट फिर से चेक करना है, लिमिटिंग रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट। तो वहाँ पर हमारा OH आयन इसमें लिमिटिंग हो गए, तो लिमिटिंग OH आयन हो गए तो OH आयन से हम निकालेंगे, ध्यान रखना H आयन से नहीं निकालेंगे। तो 1 मोल ऑफ OH आयन, तो कुल मिलाकर हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो लिमिटिंग है उससे हमें कैलकुलेट करनी है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू माइनस 57.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, 17.13 किलो जूल माइनस, मतलब एनर्जी रिलीज होगी 17.13। इस तरह से एक क्वेश्चन इसमें और भी आ सकता है आपका, लेट 400 ml of 0.2 m H2SO4 is neutralized by 600 ml of 0.1 m QH, 0.1 m KOH। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझाते हैं पहले। दिस इज योर 400 ml, कंसंट्रेशन इज 0.2 m, H2SO4 है, और दूसरा हमारे पास है 600 ml 0.1 m QH, और इन दोनों को जब मिक्स किया गया टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया यहाँ पर 1 लीटर, मतलब 1000 ml। तो हमें अब यहाँ पर पहले कंसंट्रेशन निकालनी है सल्फ्यूरिक एसिड की और QH की। तो H2SO4 की कंसंट्रेशन पहले क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ फार्मूला आपका मिक्सिंग में वैसे आपका लगता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। मिक्सिंग का लिए आपको जो मैंने फार्मूला बताया था जब मोल कॉन्सेप्ट हमने किया था कि M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब यहाँ पर बात सिर्फ जब मैं H2SO4 की करता हूँ तो यहाँ पर दूसरे सॉल्यूशन में मेरे QH सॉल्यूशन में H2SO4 की कंसंट्रेशन 0 है, तो दूसरे सॉल्यूशन में मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इज 0। मैं सिर्फ H2SO4 की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये पोर्शन आपका 0 हो जाएगा। तो M1V1 अपॉन
V1 प्लस V2। फिर दूसरी बात इसमें एक चीज़ और देखने की है, रिएक्टिविटी जो है आपकी 2 है, इसमें रिएक्टिविटी इज 2। तो एच आइन कंसंट्रेशन जो हमारी होगी वो 2 इंटू कंसंट्रेशन रिएक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगी, क्योंकि बेसिकली तो हमें एच आइन की कंसंट्रेशन निकालनी है। तो यहाँ आप सल्फ्यूरिक एसिड को कुल मिलाकर हमने सल्फ्यूरिक एसिड को 400 ml से 1000 ml किया है, और KOH को भी 600 ml से 1000 ml की। एक तरह से डाइल्यूशन केस आप यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि M1 हमारी मोलैरिटी होगी, तो ये आपका M3 अगर है तो M3V3, अगर आपका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2, अगर मैं इसको V3 लूँ तो M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। M2 हो गया 0 दूसरे सॉल्यूशन में, तो M3V3 इक्वल टू M1V1, मतलब डाइल्यूशन वाला केस आपका लग सकता है। थोड़ा सा पहले मैं इसको ज़रा समझा रहा हूँ, ये देखिए ज़रा। अगर बात मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन की, M3V3 ये डाइल्यूशन केस हमारा, मिक्सिंग केस हो रही है M1V1 प्लस M2V2। अब M2 KOH के अंदर H2SO4 की जो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर बात मैं H2SO4 की कर रहा हूँ, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो गया हमारा V3। पहले सॉल्यूशन में मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम 400 ml। दूसरे सॉल्यूशन में H2SO4 की मोलैरिटी 0 है, KOH का सॉल्यूशन है, H2SO4 की मोलैरिटी 0, वॉल्यूम 600, तो ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका M3V3 इक्वल टू M1V1, मतलब डाइल्यूशन केस ही लग जाता है। तो इस तरह से हमारी H2SO4 की जो कंसंट्रेशन होगी वो हो जाएगी M1V1 इक्वल टू M2V2, और मोलैरिटी 0.2, वॉल्यूम 400 ml, और इसकी जो फाइनल मोलैरिटी होगी जब इसको 1000 ml कर दिया गया है, तो M2 इसकी हो जाएगी 0.2 इंटू 400 डिवाइड बाई 1000, तो 0.08 m। 0.08 m इसमें हमारी H2SO4 की कंसंट्रेशन आई। कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 0.08 m। तो एच आयन जो कंसंट्रेशन होगी वो हो जाएगी इसकी रिएक्टिविटी Z से रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्टिविटी को, मल्टीप्लाइड बाई इट्स कंसंट्रेशन H2SO4। कंसंट्रेशन मतलब 2 इंटू 0.08 दैट इज इक्वल टू 0.16 m। दूसरे सॉल्यूशन में हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि वहाँ पर रिएक्टिविटी 1 थी। अब बात आ जाइए KOH की। KOH की कंसंट्रेशन में फिर वही आपकी M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 मोलैरिटी इसकी 0.1 थी, वॉल्यूम 600 ml था। फाइनल मोलैरिटी जब वॉल्यूम 1000 ml कर दिया गया, इसके अंदर 400 ml HCl डाल दिया गया। अब HCl डाला है, KOH नहीं डाला, सो H2SO4 डाला है, KOH नहीं डाला, तो उसके लिए वो डाइल्यूशन ही हो जाता है। सिर्फ हमने वॉल्यूम 0.1 इंटू 600 डिवाइड बाई 1000, सो इट विल बी 0.06। रिएक्टिविटी यहाँ पर KOH की 1 है, तो OH आयन की कंसंट्रेशन भी सेम रहेगी। OH आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ KOH, क्योंकि KOH की रिएक्टिविटी 1 है तो 0.06 m ही रहेगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास H आयन कंसंट्रेशन प्लस OH आयन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस वाटर। H आयन कंसंट्रेशन इज 0.16 m एंड OH आयन कंसंट्रेशन 0.06 m। तो अब हमें निकालना है इसकी इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट इसमें हमारी OH आयन कंसंट्रेशन है, तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू -57.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.06। 3.426 किलो जूल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट की जाती है। तो इस पर भी न्यूमेरिकल आपके आ सकते हैं। इसके बाद एक है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इंथैल्पी ऑफ
solution. तो enthalpy of solution is enthalpy change when 1 mole of substance या solute, 1 mole of solute is dissolved to such a large amount of solvent that on further dilution no heat change takes place. No heat change takes place is called enthalpy of solution. कि सोल्यूट को इतने अमाउंट सॉल्वेंट की होनी चाहिए, इतने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसोल्व करना है कि इसमें और सॉल्वेंट डाला जाए तो एनर्जी चेंज ना हो. दैट इज कॉल्ड आवर एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. एग्जांपल इसमें देख लेते हैं कि सपोज कीजिए, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं कि सपोज कीजिए आपने एक सोल्यूट है ए, एनी सोल्यूट ए, इट इज डिसोल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर. ए एक्वस आपका प्रोड्यूस हुआ और उसमें आपकी मान लीजिए कि 40 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई. अब इसमें अगर आप 100 की बजाय इसमें 100 ml सोल्यूशन वाटर और डाल देते हैं तो सोल्यूशन आपका 200 ml और उसमें सपोज कि 30 किलोजूल एनर्जी और रिलीज हो जाती है. तो ए को 100 ml सोल्यूशन बनाने में 40 और जो 200 ml सोल्यूशन बनाने में हमारी टोटल 70 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई है. लेकिन इसमें मैं अगर 100 ml वाटर और डाल देता हूँ, इट बिकम्स 300 ml. ए इज़ 1 मोल. ध्यान रखना ये 1 मोल की बात है. जब 100 ml वाटर उसमें और डाल दिया और डाइल्यूशन हो गया तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी और निकल जाती है. सपोज कीजिए 25 किलोजूल एनर्जी और रिलीज हो गई. उसमें आपने 100 ml वाटर और डाल दिया, इट बिकम्स 400 एंड इट 20 किलोजूल एनर्जी और रिलीज हो गई. आपने उसमें फिर से 100 ml वाटर डाल दिया, मतलब आप वाटर डालते जा रहे हैं, इट बिकम्स 500 ml. एनर्जी रिलीज होती जा रही है, लेट 10 किलोजूल एनर्जी मोर. अब आप सपोज कीजिए जिसमें और 100 ml डालते हो, सिर्फ 2 किलोजूल एनर्जी और रिलीज होती है 600 में. अब अगर आप इसमें और वाटर डालते हैं, वाटर 100 ml, तो अब कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती. तो जब एनर्जी रिलीज होनी बंद हो जाए, अब देखिए आपकी टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई है. 70 + 25 95 + 20 115 + 10 125 + 2 127 -127 किलोजूल टोटल एनर्जी रिलीज हुई है. अब और वाटर आप डालोगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी. सो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ सोल्यूट ए इज -127 किलोजूल. तो इस तरह से एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड टू सच ए लार्ज अमाउंट ऑफ solvent that on further dilution no heat change takes place is called enthalpy of solution. तो ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज हैं. एक इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होती है हमारी, इंथैल्पी चेंज व्हेन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज हाइड्रेटेड. व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज हाइड्रेटेड. 1 मोल सब्सटेंस हाइड्रेटेड होता है तो उसमें जो एनर्जी चेंज होगा, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट है प्लस वाटर, इट प्रोड्यूस CuSO4 5H2O एंड डेल्टा H इज -78.21. दिस इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट. तो ये आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज हुई. पहले हमने इसमें की थी इंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफ़र, जिसमें आपकी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, इंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आई थी. और ऑन द बेस ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन
टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बेस पर हमारी इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, और एक हमने बताया इसमें बॉन्ड एनर्जी के बारे में कि एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पार्टिकुलर टाइप। बॉन्ड एनर्जी कि अगर आपका मीथेन है, इसको अगर हम गैसियस एटम में डिसोसिएट करते हैं, गैसियस हाइड्रोजन एटम एंड गैसियस कार्बन एटम, तो 1 मोल मीथेन अगर आप लोगे तो इट विल लीड्स टू द डिसोसिएशन ऑफ 4 मोल्स, 4 मोल बॉन्ड डिसोसिएट हो रहे हैं। तो 1 मोल के लिए उसकी एवरेज अगर टोटल एनर्जी x रिलीज हुई है 4 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल में 4 मोल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो x/4 होगी, बिकॉज x इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ 4 मोल ऑफ CH बॉन्ड। तो 1 मोल को तोड़ने में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, एवरेज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड अवर बॉन्ड एनर्जी। तो कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो x/4 हो जाएगी। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी हैं। अब इसमें कुछ लॉज हैं, लावोजियर लैप्लेस लॉ एंड हेसिस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।